Good day everyone. We are a group of students from LGS Canal campus and we are known as Rule the Road. And we are currently working on a group of project exploring the rules and limits of the legal system. Today we have the privilege of interviewing an lawyer to gain valuable insight into the legal profession. We aim to understand the practical challenges, ethical consideration and the impact of law on society. We hope the interview provides an informative and engaging perspective for our audience. Thank you for your time and we look forward to learning from this conversation. तो शुरू करें। जी जी प्लीज़। अच्छा, तो हाँ, पहला क्वेश्चन है आपके ओपिनियन में व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियंस ऑन द रोड? Look, the basic right of every citizen, whether he is driving a car, riding a bike, or he is a pedestrian, is a right of way. Everyone deserves that he should have the right to cross the road or pass his vehicle first. Now comes the situation, who first? When you are on a car, you must observe the zebra crossings, and if you are crossing a road, you should also observe the zebra crossings. You should not cross the roads other than the zebra crossings. Zebra crossings in Pakistan don't have red or green signals, so here we have to cross the roads on our own. When the traffic signal is red, usually the zebra crossings are green. So the road crossing should be done while the particular side of the signal is red and the traffic is stopped. As far as the drivers are concerned, while they are driving a car or riding a bike, they should observe their lanes. Observing the lanes means when you are on a bike, you should use the extreme left lane, and when you are in a car, you should use the middle lane when it's a 3-lane road. If it's a 2-lane road, then there may be a little bit hustle or a rush. So usually the first lane, the right hand lane, is used for overtaking. So when a car from behind you ask for a way to cross or to overtake you, you should take a left and give him a right, preferred right to pass on, and then you can switch to the lane. In your opinion and in your perspective, what should a driver do if they are involved in an accident where the other party is at fault? When an accident happens, obviously at roads, if you see practically, there may be a minor mistake of the other party too. Accidents happen due to fault of both the parties. Usually, there are very less cases, very minor ratio of the cases where the accident is occurred due to the mistake of one party. Anyhow, if it happens, we have law enforcement agencies, we have police, we have traffic police, we have courts. If it happens that someone hits from behind your car, you can call the police. There is a remedy, there is a provision of law where an FIR for rash and negligent driving can be registered against a particular person who hits you from behind. So there are laws, but the people are ignorant not in a sense the typical meaning of ignorant means ignorant of law. They don't know the law, they don't know their rights. So when there occurs an accident, people usually used to
sort out that matter at their own, and that happens in road rage and fights, etc. What do you think that how do laws address the issue of road rage or aggressive while driving? There is a provision in law where we can address the road rage and aggressive and rash driving. That is cognizable. Police can register an FIR. They can arrest a particular person who is involved in a road rage or an accident or a rash driving. There is law. So, what do you think about the legal implications of driving under the influence of drug and alcohol? Intoxications. We have a particular section. We have a particular offence for that. The section, the offence relating to aggressive and rash driving also covers the driving under the influence of alcohol and intoxicants, and there is another specific provision relating to driving while you are intoxicated. What do you think about the new type of smoking, like pods or vapes? Teenagers are using while driving it, or smoking while driving. Smoking itself is prohibited under the laws of Pakistan. You cannot justify smoking that it's allowed at a public place, or you are driving your own car and you are in your car and it doesn't affect the surroundings. Smoking is prohibited. Smoking is injurious to health, so it cannot in either way be supported. Do you know if laptop थोड़ा करना? Sorry? laptop थोड़ा करना? क्या करना है? इधर करना है? थोड़ा सा करना. अच्छा इधर करना है. So if I put the question. माइक में डिस्टर्बेंस शायद आ जाए जैसे. So if I put the question specifically, if a citizen is charged with a traffic ticket or a citation, how can he contest the traffic ticket or citation legally? There are special judicial magistrates who address this issue. You can contest the ticket before court, but for that you have to wait for 10 days. For 10 days it remained at the premises of traffic police. After 10 days they shift this to the court of special judicial magistrate, where there you can contest it, but you have to prove that the violation you are charged with, you have not committed that. So what are the rights of a driver during a traffic stop by law enforcement? It depends what that stop is and why that stop is. And if law enforcement become violent with a person, That usually don't happen. That usually don't happen unless you become violent. There are security protocols. If a traffic is stopped for passing of some VIP's route, those are under security protocols, and usually it bothers us, but that is a protocol. Do you agree with the disparity of man and woman? Inequality between man and woman during driving laws? No, not at all. Not And at all. what do you think about rich and poor? Is there any disparity? There or is no differences class. by the law There is enforcement? no class. Even Islam says there is no class. सब सब अमीर और गरीब बराबर हैं. We can see that advocates are not. जैसे कि आप देख रहे हैं आप किसी की इंडिविजुअल एक्ट को कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए डिफाइन नहीं कर सकते ना. मैं अगर किसी से बाहर लड़ता हूँ तो यू कैंट से कि ये अगर ये लॉयर है तो ये बुरा है, ये मार रहा है. हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी गई हो कि मुझे उससे लड़ना पड़ जाए. और अगर मैं किसी से बुरा कर रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि सारे लॉयर्स बुरे हैं. तो कम्युनिटी किसी इंडिविजुअल शख्स की जो एक्ट है, दैट डजंट डिफाइन द कम्युनिटी. So अगर हम रूल्स से हट के देखें एक्सीडेंट के बारे में, तो आपके ख्याल में एक्सीडेंट में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप क्या करना चाहिए? किस किस्म के एक्सीडेंट? कोई रोड एक्सीडेंट में देखें, रैश ड्राइविंग और डिपेंड करता है कि हाँ, अगर आप अंडर एज हैं तो आप चार्जेबल हैं. अब अंडर एज होने के बाद फिर आपको लॉ की कुछ एग्जेम्पशंस हासिल हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस.
if you have caused an accident which caused a death of a person or a permanent disability, that is a heinous offense. But if you are carrying a driving license, you are having a driving license, valid driving license, you have some rights, you are protected under the law. Again, that will be seen as per the facts of the case, whether you have hit with intention or was it a really an accident that was not deliberate. As we're talking about teenagers, so what are the legal responsibilities of parents if their child caught while driving? I think parents should not allow the children to drive a car or ride a bike unless they attain the 18 Sometimes, or they have the driving license. sometimes I shouldn't just grab the keys and went out driving. There should be a control, and if there is not, there is no justification. So, my question was that what steps should be taken immediately after being involved in an accident? Accident depends on you caused the accident or you are a sufferer. You can bifurcate your question. You are a sufferer or you caused the accident. Yeah, so what rule, roles or rights are usually misunderstood or ignored? The basic thing we are ignoring on road is the right of way that other people on road, whether they are pedestrians, they are bikers, they are driving a car, we ignore the right of way. The basic thing on the road and the main reason for a road rage is not letting the other one pass. अच्छा आपका क्या ख्याल है अभी जो एक्सीडेंट हुआ था जो गुल अहमद के एम्बेसडर है कराची में उसने भी एक्सीडेंट किया है वो वाइफ थी पता चला किसी फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन में वो उसने इन्फ्लुएंस हुई और उसने फिर एक्सीडेंट किया। देखिए इंटॉक्सिकेट अगर कोई बंदा इंटॉक्सिकेंट है तो लॉ इंटॉक्सिकेशन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस दैट इज़ नॉट परमिटेड. सो व्हेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड you have committed one offense. You are driving while under influence of intoxicant, that is another offense, and by that driving you have caused an accident and killed someone, that is another and a heinous offense. Law doesn't protect you at all when you are driving a car while you are intoxicated. And we also heard rumors कि जो कोर्ट ने उसको पागल का तो नाम वो सेटलमेंट्स थी. देखें उसमें कुछ चीज़ें होती हैं. कोर्ट ने उसको पागल करार दे के उसको बरी नहीं किया. उन्होंने सेटलमेंट की है फॉर अ ह्यूज अमाउंट. ऑब्वियसली इस्लाम में नहीं, इस्लाम में गरीब के लिए भी दियत का है. अगर किसी गरीब के हाथों किसी का मर्डर हो जाता है तो देयर इज़ अ दियत, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ दियत which is given by Islam, जो हमारे नबी ने दिया, जो अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया दियत. देयर इज़ अ वैल्यू गिवन ऑफ दियत. इस्लाम को अगर ना करें तो आजकल ये देखा जा रहा है कि वो काफ़ी जो मॉडर्न है से करते हैं क्या जैसे इनइक्वालिटी करते हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच Like money speaks. इनइक्वालिटी इन अ सेंस क्या Yes. मनी स्पीक्स के हिसाब से Money यानी कि speaks वो में, यार देखें rich and poor. अगेन मैंने आपको पहले बताया कि किसी के इंडिविजुअल एक्ट के ऊपर आप कम्युनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते. Mostly in Pakistan. सब नहीं करते. अगेन पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग इकोनॉमी. यहाँ बहुत सारी इन्फ्लेशन है और एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन इनकम बहुत कम है. तो एवरीवन इज़ ट्राइंग टू हैव अ सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम. तो जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो दैट विल लीड यू टू करप्शन. तो उसमें फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली आ जाता है आंसर कि वो आपको अगर कहीं पे इस तरह का कोई इशू फेस करना पड़ गया तो उसके पीछे ये रीज़न्स हो सकती हैं. बाकी मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं पे इस तरह की रोड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुई हो. मैं अभी पिछले 30 साल से 25 साल से ड्राइव कर रहा हूँ
तो ऐसा कहीं पे फेस नहीं किया कि आप मेरे सामने कहीं किसी खातून को जाने दिया और मुझे रोक लिया हो। And the main question is, everyone wants to know about that. What are the consequences for breaking specific rules? Rules, what Yes, rules? rules like underage driving, driving without license, driving harshly, Traffic or lights. Road traffic rage. lights. When you break violate a traffic light, you are given a challan in the shape of a chit that is immediately payable. There is no other offense for that in our law. That is just a fine. If you repeat the offense next time, whether it's after 15 minutes, 10 minutes, you are again given a chit for fine. आपने अभी चलान की बात की तो अभी एक आर्टिकल देखे हैं कुछ उसमें लिखा है कि एक नया रूल है कि हर वार्डन वाला एक दिन के शायद 25 वो रूल नहीं है, वो उनका टारगेट होता है। उनकी सैलरीज जाती है ना, गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, गवर्नमेंट हैज़ टू मीट द एक्सपेंसेस। तो उस रेवेन्यू को पूरा करने के लिए उनकी बाइक्स का, उनके फ्यूल का और ट्रैफिक का और सारी लाइट्स और ये वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है ना। तो अगर वो आपको क्या लगता है कि लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं भी आप किसी सड़क के किनारे पे खड़े हो जाएं, किसी रोड पे खड़े हो जाएं, किसी हाईवे पे खड़े हो जाएं या विद इन सिटी किसी छोटी सी रोड पे खड़े हो जाएं, आप खुद से ऑब्ज़र्व करें, कीनली आप देखें कि हर गुज़रती हुई बाइक और हर गुज़रती हुई गाड़ी एक वायलेशन है। और अगर आप वायलेशंस के ऊपर टिकट देने लगे ना तो आप हर गाड़ी वाले को 10-10 हज़ार की वायलेशन का टिकट दे के भेजेंगे, हर बाइक वाले को 5-5 हज़ार का वायलेशन का टिकट दे के भेजेंगे। किसी के नंबर प्लेट्स नहीं है, किसी के इंडिकेटर्स नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइव कर रहा है, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, किसी की लाइट्स नहीं जलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई अपनी गलत साइड पे ड्राइव कर रहा है, कोई अपनी लेन बेहतर नहीं कर रहा, कोई गलत लेन में ड्राइव कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं वाइल दे आर हैंडिंग ओवर अ ट्रैफिक चालान टिकट। तो इसमें जो अगर कोई टारगेट ऐसा है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई टारगेट है, इफ़ देयर इज़ तो दैट इज़ वेरी मिनिमल। 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, कुछ भी नहीं है। 10 घंटे की ड्यूटी में 25 चालान, 5 मिनट में मैं खड़ा हूँ, 5 मिनट में आपको 25 करके दे दूँगा, और बाकी फिर 9 घंटे और 55 मिनट में फ्री खड़ा हूँगा एक साइड पे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई सिटीजन है वो किसी गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी को डैमेज करता है ड्यू टू रोड रेज या एक्सीडेंट्स करते हैं, देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ तो लॉ उसको दैट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कुछ देर पहले ना तो एक rule- गवर्नमेंट उसको उसके साथ कैसे डील करती है? देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ लॉ, आपके खिलाफ FIR हो सकती है, यू कैन गो टू जेल वेदर इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी और अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ देर पहले एक रूल था कि जो अंडर एज ड्राइवर्स थे उनके ऊपर FIR हो रही थी और मिनिमम एक डे में मोर देन 5000 FIRs हुई थी। बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई काफी थी। सारे जेल हाँ, में। वो एक स्पेसिफिक एग्जेक्टिव ऑर्डर था जिसके अगेंस्ट वो सारा उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की थी। और ऑब्वियसली द मोटो इज़ टू डिस्करेज द अंडर एज ड्राइविंग, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक यहाँ पे लाहौर में एक पोश एरिया में DHA में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा ख्याल 4 लोगों की डेथ हुई थी एक अंडर एज ड्राइवर की वजह से। तो उसके बाद फिर वो लाहौर हाई कोर्ट ने थोड़ा सा इंटरवीन किया था और उसमें एग्जेक्टिव ऑर्डर फिर एक पास हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि जी जो भी तब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंडर एज ड्राइविंग के ख़िलाफ़ उन्होंने एक क्रैकडाउन किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने रोक दिया। बट दैट इज़ एन ऑफेंस, स्टिल एन ऑफेंस। मुझे ये लगता है कि ये जो FIR हुई थी इनको चांस देना चाहिए था, क्योंकि किसी बच्चे पे FIR हुई है तो उसका लाइफ पे काफ़ी असर पड़ेगा। बिकॉज अगर किसी पे FIR हुई तो वो forward बच्चा नहीं गाड़ी जा लेके क्यों सकता। निकले? बच्चे के पेरेंट्स हैं, उसको लेके जाएं, ड्राइवर रख के दें। लेकिन अगर एक चांस दिया जाए चलान वगैरह कुछ नेक्स्ट टाइम वार्निंग होनी चाहिए, Yes. वार्निंग होनी चाहिए, लेकिन That's- वार्निंग देखें, एक होती है एक इंडिविजुअल वार्निंग, एक है पब्लिक वार्निंग। उन्होंने पब्लिक वार्निंग दे दी, इंटीमेशन दे दिया, सबको पता चल गया। आपको हर रोज़ न्यूज़ में आप सुनते होंगे आज इतने लोगों के खिलाफ FIR हो गई, आज इतनों के खिलाफ FIR हो गई है। तो दैट इज़ अ वार्निंग कि आप नहीं Also निकलें। parents- उसके बावजूद भी फिर आप निकलेंगे तो फिर यू आर कल्प्रिट। और आपका ओपिनियन क्या है ये फ़ोन यूजेज पे ड्राइविंग? ऑब्वियसली दैट इज़ इलीगल। मेरा उसमें ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता, दैट इज़ इलीगल। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अगर आपकी जो रोड्स हैं वो तो गवर्नमेंटल ड्यूटी है ना, रोड्स बनाना,
उनको बिल्कुल मेंटेन करना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी नेविगेशन या उसकी प्रॉपर्टी में कोई गवर्नमेंट से मिसहैप हो जाए और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ डैमेज हो जाए तो देखिए, अगर रोड ब्रेकेज की वजह से या किसी बम्प की वजह से एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दैट इज़ अपॉन द ड्राइवर। अगर क्यों? इसलिए कि ड्राइवर मस्ट बी विजिलेंट, उसको पता होना चाहिए कि रोड में बम्प है, रोड में खड्डा है, तो आई हैव टू बी केयरफुल। अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो मैं ये कहना चाहता कि अगर कोई स्पीड लिमिट हो वहाँ पे लेकिन उन्हें वो साइन उनका उतर गया हो या मेंटेन ना कर पाए हो उस साइन को या स्टॉप साइन को या वन लेन साइन को, किसी भी साइन स्पीड लिमिट्स हैं, स्पीड लिमिट्स शहर के अंदर भी हैं और शहर से बाहर भी हर जगह पे हैं। हाँ, बाज़ औक़ात होता है कि वेल मेंटेन्ड नहीं होती, वो फेड हो जाता है वक्त के साथ साथ, मिट जाती हैं वो इंडिकेशंस, तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे फिर वो चलान भी नहीं कर रहे होते। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि नॉर्मली जो वायलेशन अपॉन स्पीड जो है वो सिर्फ तभी हो रहा होता है जब आप स्पेसिफिक इंडिकेशन को वायलेट करके आ रहे होते हैं। जिस रोड के ऊपर स्पेसिफिक स्पीड लिमिट नहीं है वहाँ पे फिर आपको चलान भी नहीं किया जाता स्पीड लिमिट का। जैसे अभी इन दोनों ने बात किया कि ये मोबाइल यूज़ करते हैं तो इलीगल है वो, तो स्पीड लिमिट्स भी नहीं, काफ़ी लोग फॉलो नहीं करते। तो ग्लोबली तो इस पर एक्शन लिया जाता है कि काफ़ी रोड्स के साइड में कैमरास लगे होते हैं, वो फ्लैश हमारे भी लगे हुए हैं, लेकिन चलान आते हैं काफ़ी जगह पर नहीं आते, वैसे पूरे हर जगह नहीं लगे होते हैं चलान। ऑब्वियसली दैट इज़ अ कॉस्टली थिंग। स्पीड कैमरा या स्पीड रडार जो है तो विद इन रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं हाईवेज। कुछ देखें, कुछ रोड हैं, जैसे आपकी ये सामने वाली रोड है, यहाँ पे आप 30 से ऊपर वैसे ही गाड़ी नहीं चला सकते, 30 भी मैंने ज़्यादा बता दिया। ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से निकल के तो रिंग रोड तक, तो जब हम निकलते तो यहाँ पे 2-4 आपको टकराए हुए आपस में मिल जाते हैं जो रैश ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वो 25-30 से ऊपर तो यहाँ वैसे बंदा ड्राइव नहीं कर सकता। तो कुछ रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे आप वैसे ही रशी हैं तो आप वहाँ पे स्पीड नहीं कर सकते। तो जो रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे आप स्पीड कर सकते हैं, जैसे कैनाल रोड है या दूसरी कोई मेन रोड्स हैं बड़ी, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट्स हैं, वहाँ पे स्पीड कैमरास भी हैं। स्पीड लिमिट यहाँ पे भी है, डिफाइंड है 50 से ऊपर, बल्कि 40 है, 40 से ऊपर आप नहीं चला सकते। So what are the legal consequences for breaking the rules, such as driving without a license or reckless driving? Driving without license has a sudden consequence. You are given a challan sheet and you are fined at the spot. FIR हो सकती है इस पर, कोई भी FIR अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर स्पेसिफिकली तो नहीं देते नॉर्मली। वो जो ट्रेंड चला था पिछले दिनों में, दैट वाज ड्यू टू अ स्पेसिफिक एग्जेक्टिव ऑर्डर, और उसके बाद फिर वो उन्होंने रोक दिया। तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर वही FIR हो सकती है कि जो आप रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ऊपर होती है। अच्छा, लास्ट में आप कुछ ऐसे रूल्स हैं बता दें जो आप अवेयर करना चाहते हैं कि हमें नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस वाला रोकता है बाइक वाले, वो चाबी उतार देता है जो कि इलीगल है, तो कुछ ऐसे आप रूल्स बता दें ताकि हम अवेयर कर सकें अपने टीनेजर्स को या ओल्ड एज ड्राइवर्स को, या जैसे कि वो आपसे कितनी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं बेस्ड ऑन गवर्नमेंट और ऑर्डर्स। काफी जैसे बार आपको ऐसा- गाड़ी में रोकते हैं तो वो आपको कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ भी दे दो, फ़लाँ चीज़ भी हमें शो करो। देखिए, वो कितनी ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन? जो पुलिस के पास पावर्स है ना, पुलिस के पास सर्च एंड सीज़र की पावर्स है। सर्च एंड सीज़र मींस कि वो आपकी जो थारो सर्च है, बॉडी सर्च, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। स्पेसिफिक ऑर्डर आपके लिए नहीं, एक जनरल ऑर्डर भी होता है कि जी कोई एप्रीहेंशन, अगर Warrant. स्पेसिफिक एप्रीहेंशन है वारंट। तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि जी आप एक जनरल होल्ड ऑन करें, उस होल्ड ऑन में आप ये करें कि जी आप सबकी तलाशी लें। बाज़ औक़ात पुलिस वाले जो ड्रग माफिया है उनकी सर्च में होते हैं, तो उसके लिए वो लोगों को रोक के सर्च कर रहे होते हैं। इलीगल वेपन कैरियर्स जो होते हैं उनके लिए वो सर्च कर रहे होते हैं कुछ, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टोलन कार्स और बाइक्स के लिए वो उन्होंने रोका होता है, नाकाबंदी की होती है और उसके लिए वो चेक कर रहे होते हैं। सो दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग, दे कैन आस्क फॉर योर आइडेंटिटी, दे कैन आस्क फॉर द आइडेंटिटी ऑफ योर व्हीकल, द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर व्हीकल, द आइडेंटिटी ऑफ योर पैसेंजर्स,
और वो आपको थारो सर्च भी कर सकते हैं। तो इसमें इस सिचुएशन में बेहतर ये होता है कि आप कोऑपरेट करें और आप उसको उनको उनका काम करने दें और आपके ख्याल में कोई अगर रूल आपको बताना चाहें कि ये रूल होना जो कि चाहिए hidden और जो secret कर है। सके? देखिए हिडन या सीक्रेट रूल्स ऐसे कोई भी नहीं है जो हिडन हो। ये मतलब जो ज़्यादा इग्नोरेंस हो सकती है, इग्नोरेंस हो Well सकती known, है, हाँ। हाँ इग्नोरेंस हो सकती है कि हमें नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी शायद मैंने भी कभी बॉदर नहीं की होंगी। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेजॉरिटी को नहीं पता। या आजकल तो लोग वैसे भी बॉदर नहीं करते ना कि मोबाइल तो आम में है कि हर बंदा हाथ में लेके वाइल ड्राइविंग वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ इम्प्रूव करने के लिए अगर अभी बताएं कुछ अगर हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहें इस पाकिस्तान देखें अगर आप चाहते हैं कि जी ट्रैफिक के फ़्लो में और बेहतरी आए और आप बग़ैर रुके घर पहुंच सकें, अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकें और कोई बदमज़गी कोई एक्सीडेंट ना हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स क्या हैं? सबसे मेन चीज़ है कि आप अपनी लेन में रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लेन कौन सी है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी लेन को जानते हो। बाइकर्स के लिए यूजुअली सबसे नीचे वाली लेफ़्ट साइड वाली लेन होती है पाकिस्तान में, क्योंकि राइट हैंड ड्राइविंग है तो आप बाइकर्स एक्सट्रीम लेफ़्ट पे होते हैं। मिडल वाली लेन जो है वो यूजुअल ट्रैफिक के लिए जो फ़्लो है उसमें लिए होती है और फर्स्ट लेन जो है वो ओवरटेकिंग के लिए क्रॉसिंग्स के लिए होती है। दूसरा ये कि आप दूसरों के जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, जब आप रोड पे होते हैं तो आप दूसरों की रास्ते का या उनको प्रेफर करना चाहिए आपको। मैं नहीं कहता कि आप प्रेफर इन द सेंस कि आप रुक जाएं और बाकियों को जाने दें, लेकिन जब आपसे कोई रास्ता मांगता है तो प्रॉपराइटी डिमांड्स के लिए आप उसको रास्ता दें, लॉ डिमांड्स के आप उसको रास्ता दें, उसका राइट है। रास्ता दें और इंडिकेटर्स दें। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर ऑब्वियसली प्रॉपर, क्योंकि जब आप लेन स्विच कर रहे होते हैं तो आपके पीछे भी ट्रैफिक आ रही होती है तो पीछे आपको वाले के इंडिकेट नहीं, आपकी साइड वालों को भी। बिल्कुल आपको इंडिकेट करना पड़ता है। रिसेंटली इंटरव्यूज लिए थे मेरे रिक्शा ड्राइवर्स के। हम्म। उनका ये ख्याल था कि जो है ना ट्रैफिक पुलिस सब कुछ होने के बावजूद भी चलान कर लेते हैं। वो देखें रिक्शा वाले जो है ना वो एक अलग कम्युनिटी है। उनके Sometimes पास सब bikers कुछ will- नहीं होता, उनके पास सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास नहीं होती। जब चलान होने पे आता है तो अगेन मैंने आपको पहले बताया कि 5 मिनट यहाँ खड़े हो तो आप 25 या 50 चलान कर लेंगे। हर बंदे का कोई ना कोई चलान एक नहीं 5-5 बन जाएंगे। उनकी किसी की नंबर प्लेट्स नहीं है, किसी की लाइट्स नहीं है, तो रिक्शा वालों का चलान करना बड़ा आसान सा काम है, वो हो जाता है। अच्छा, एक हमने इंटरव्यू लिया था रिक्शा वाले का, उसका ये कहना था कि पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है। यार वो आपको अगेन भी- दैट इज़ इग्नोरेंस। अगर आपको नहीं पता तो फिर उसका मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान में कानून है। तो यही चाह रहे हैं कि हम अवेयर करें इन सब रिक्शे वाले जो भी हैं कि Awareness पाकिस्तान create में करें। कानून है। बिल्कुल कानून है, आप हर चीज़ के लिए कानून है। अगर रिक्शा वाला का चलान हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? उसमें क्योंकि follow नहीं किए हाँ rules। क्योंकि कानून है तो चलान हो रहा है। अगर कानून नहीं है तो उसका चलान क्यों हो रहा है? और अगर कानून नहीं है तो वो रिक्शा क्यों चला रहा है? और अगर कानून नहीं है तो उसने रिक्शा रजिस्टर क्यों करवाया था? कानून के अंडर रजिस्टर करवाया तो देयर इज़ अ लॉ फॉर एवरीथिंग, बट पीपल डोंट नो। आपका कोई ओपिनियन है कि हम अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस टॉपिक पे? देखिए अवेयरनेस के लिए, रोड अवेयरनेस के लिए आपको रोड पे जाना पड़ता है। रोड पे तो बिल्कुल सही बात। रोड अवेयरनेस के लिए आपको पम्फलेट्स प्रिंट करवाने पड़ेंगे, आपको लोगों को Posters बनाना पड़ेगा, पोस्टर्स flags। बनाने पड़ेंगे, फ्लैक्सेस बनवा के आप रोड्स की साइड्स पे लगा दें। ट्रैफिक पुलिस से आप उनकी कोऑर्डिनेशन से आप ऑब्वियसली ये कर सकेंगे, अदरवाइज तो वो आपको नहीं करने देंगे। फिर आप सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे मीन्स हैं आजकल तो सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, आप सोशल मीडिया से कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। आप ट्रैफिक सबसे, और एक इजी वे ये भी है कि आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे शाम में आप किसी मेन रोड के ऊपर, किसी बिजी रोड के ऊपर खड़े हों और आप अवेयरनेस क्रिएट करें थ्रू साइंस, थ्रू पोस्टर्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। You're welcome. बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपका।